Yo, welcome to Physics with Vinay Uppal. Hi, I'm Vinay Uppal and I'm back. And I'm back with a very important video for all the JEE Main 2024 aspirants. इस वीडियो में I'm going to show you how to solve JEE Main questions in a very short manner. So यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे questions आए हुए हैं previous years में where you can apply some special techniques to quickly eliminate the options and get the answer. So I'm going to show you not one, not two, but three such methods in order to solve questions in the fastest possible manner. So what I want you to do is एकदम ध्यान से सुनना video. I'm going to show you examples of these applications. Rather, I'm going to show you applications of these methods. बहुत सारे PYQs अपन करेंगे जहाँ पे मैं अप्लाई करके बताऊंगा तुमको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है. So I want you to watch the video very clearly and use it in your next mock test. Use it when you're solving the next set of PYQs. तो ये जो methods आज मैं सिखाने वाला हूँ, I want you to use them and practice them whenever you encounter questions of a certain type जो हम लोग करेंगे, ठीक है? So I hope you're as excited as I am. Let's go. So let me call it cheat code 1. Just नाम दे रहा हूँ so that ये ऐसा नाम दे रहा हूँ so that तुम्हारे मन में वो रहेगा, ठीक है? So it will stay in your mind जब तुम अगली बार mock test दे रहे हो, ठीक है? तो cheat code 1 is basically using special values. तो एक certain type of questions आते हैं where the question is in terms of variables. तो जब general variables के terms में होते हैं, often you can get the right answer without actually doing the question properly just by choosing a specific set of values. तो मैं PYQs के थ्रू ही बताऊंगा तो एकदम तुमको समझ में आ जाएगा किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से स्पेशल वैल्यूज चूज करना है. ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द PYQ. तो उसी के थ्रू तुमको समझ में आ जाएगा. ऑलराइट, लेट्स गो. सो लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन जो JEE 2023 में आया था. एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते. A vessel of depth D is half filled with oil of refractive index N1 and the other half is filled with water of refractive index N2. Apparent depth of the vessel is what? ठीक है, तो इसको लेट्स डू दिस बाय चूजिंग सम स्पेशल वैल्यूज फॉर N1 and N2. नाउ आई विल शो यू, मतलब जैसे मैं अभी बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, यू ऑल्सो शुड ट्राई टू थिंक ऑफ सच स्पेशल वैल्यूज योरसेल्व्स व्हेन यू सॉल्व योर मॉक टेस्ट द नेक्स्ट टाइम, ठीक है? तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज लेट मी टेक N1 and N2 दोनों को 1 ले लेता हूँ. मतलब वेसल पूरा एम्प्टी वेसल, मतलब उसका जो अपेरेंट डेप्थ है वही उसका पूरा डेप्थ हो गया, करेक्ट? सो आई शुड गेट द आंसर एज D फॉर द अपेरेंट डेप्थ. इस ऑप्शन में देखो N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू 1 अगर मैं करूंगा तो ये तो 4D हो जाएगा, गलत हो गया. N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू 1 करूंगा तो D/4 हो जाएगा. N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू 1 करूंगा D/2 हो जाएगा. N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू 1 करूंगा तो मेरा D आंसर मिलेगा. दैट्स इट, ठीक है? सो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इफ यू कैन फिगर आउट the values of the special values of the refractive index to choose, ठीक है? So ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं. ऐसा मत सोचना कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन में अपना ये मेथड काम करके, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं where you can quickly eliminate the options. Now I have to stop here and tell you that this method is for the exam purpose, फटाफट solve करने के लिए, and it will work when you have variables involved. But अगर N1 N2 की जगह values दे देते then you should still know how to do this correctly using the correct physics. इसको किस तरीके से किया जाता है वो तुमको पता होना चाहिए. I'm not going to discuss that physics here. The aim in this video is not to discuss the physics but to discuss the applications of this cute cheat code method, ठीक है? Alright, so मैंने ऐसा examples ऐसे मैंने values choose किए such that I can quickly get a special case जहाँ पे पूरा empty vessel था. ऑलराइट, ऐसे और PYQs में एप्लीकेशन देखेंगे तो तुमको भी फील आ जाएगा कि किस तरीके से वैल्यूज चूज करना है, बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस आवर प्रॉब्लम टू अ फेमिलियर सिचुएशन, ठीक है? तो यहाँ पर जो लिक्विड्स भरा हुआ था वेसल में उसको मैंने एक फेमिलियर सिचुएशन में कन्वर्ट कर दिया जहाँ पर वेसल पूरा एम्प्टी था. ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेट्स डू अ क्वेश्चन जो JEE 2022 में आया था, कैपेसिटेंस पे आया था. देखो, टू आइडेंटिकल थिन प्लेट मेटल्स हैव चार्जेस Q1 and Q2 such that Q1 is greater than Q2, ठीक है? Plates were brought close together to each other to form a parallel plate capacitor of capacitance C. Potential difference between them will be what? तो अलग-अलग charges दिए हुए हैं. So instead of solving the actual question, what we can do is we can take some special values and eliminate options. So let's take देखो मेरे को पता है पोटेंशियल डिफरेंस सबसे इजीएस्ट केस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है व्हेन द चार्जेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर, Q1 माइनस Q जो होता है. सो लेट्स जस्ट टेक Q1 को 1 कूलम लेता हूँ, Q2 को -1 कूलम लेता हूँ. Q1 इज ग्रेटर देन Q2 बोला है ना,
एंड कैपेसिटेंस को 1 फैरेड ले लेता हूँ, तो मुझे पता पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना पड़ेगा, ये 1 कूलम, ये -1 कूलम, 1 फैरेड, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 वोल्ट चार्ज बाय कैपेसिटेंस। चेक कर लेते हैं Q1 एंड Q2, Q1 इज 1, Q2 इज -1 डिवाइड बाय 1, ये तो 4 हो गया, 2 into 2 करेक्ट। अगर मैं ऑप्शन बी को देखूँ, मुझे पता है एक्चुअली आंसर सी करेक्ट है, तो पहले मैं बी बता देता हूँ। Q1 एंड Q2 के वैल्यूज 1 एंड -1, तो ये तो 2 वोल्ट बन जाएगा। Q1 एंड Q2 इक्वल एंड ऑपोजिट, ये 0 बन जाएगा। द ओनली आंसर इज सी। Q1 इज 1, Q2 इज -1, 1 + 1 2 डिवाइड बाय 2 इज 1। ठीक है, सी को मैंने 1 फैरेड लिया, आंसर ये एक्सपेक्टेड है। ऑलराइट, सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द फुल क्वेश्चन वी कैन क्विकली टेक स्पेशल वैल्यूज। क्या स्पेशल वैल्यूज लिए मैंने? समथिंग दैट इज फेमिलियर टू अस वेयर द चार्जेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। वो वाला सिचुएशन मैंने आई ट्राई टू रेड्यूस दिस प्रॉब्लम टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, क्योंकि Q1 Q2 जनरल दिया होगा ना। So we want in such questions, the mindset is that we want to reduce the problem to something that is familiar to us. So Q and minus Q equal अगर an opposite है तो डायरेक्ट में Q by C को मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूँ। ठीक है, और मैंने इजी वैल्यूज ले लिया, 1 -1 वगैरह ले लिया। ठीक है, तो सिर्फ आंसर C मैच करेगा उसमें, बट करेक्ट फिजिक्स से भी मेथड उनको पता होना चाहिए। राइट, देख लो। Let's look at a capacitance question. The two capacitors C1 and C2 are connected as shown. Initially C1 is charged to a potential difference V. तो इसको पहले potential difference V पे चार्ज करिए, मतलब इस पे चार्ज आ जाएगा कितना, C1 into V. Then the battery is removed and C1 is now connected to C2 by closing the switch. ठीक है, amount of charge on capacitor C2 after equilibrium is what? और ये options दिए हुए हैं। Okay, so once again we'll try and think of taking a special case जो easy होगा हमारे लिए। अगर मैं C1 equal to C2 ले लूँ, let's say both of them are equal to C, ठीक है, तो फिर दोनों पे obviously same charge होना चाहिए ultimately because they are connected in parallel. You can say they are in parallel. Potential difference दोनों के अक्रॉस सेम है, कैपेसिटेंस अगर सेम है तो फिर पोटेंशियल तो फिर चार्ज भी सेम होना पड़ेगा दोनों के अक्रॉस। सो लेट्स टेक अ लुक। अगर C1 equal to C2 है, सो आई शुड गेट माय चार्ज, टोटल चार्ज कंजर्व्ड है, इनिशियली कितना है CV, C1 का वैल्यू C रख दिया, तो फाइनली चार्ज दोनों पे कितना आना चाहिए, CV/2 आना चाहिए ऑन बोथ। करेक्ट, टोटल चार्ज कंजर्व्ड है एंड इक्वल है, तो फिर CV/2 आना चाहिए, जो ओरिजिनल चार्ज था उसका आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो लेट्स चेक, यहाँ पर C1 equal to C2 कर दिया तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर अगर C1 equal to C2 कर दिया तो 2CV हो जाएगा, यहाँ पर अगर C1 equal to C2, ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, वो तो दिखना चाहिए, दिस डायमेंशन इज 1/C, ऊपर C डायमेंशन है, नीचे C स्क्वायर है, तो 1/C है, V/C तो वैसे भी गलत हो गया, वो छोड़ो, कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर जस्ट चेक करो, C1 equal to C2 रख दिया तो C और नीचे क्या बन जाएगा 2C, सो ऊपर C स्क्वायर नीचे 2C, तो बन जाएगा CV/2 एंड दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट विल मैच। ठीक है, so once again without doing any calculation we have reduced this problem to a situation that is easy for us to analyze by taking a general by taking a special value for this general case. ठीक है, once again you should know how to do it correctly. You should know कुछ charge x flow करके potential difference equate करके you should be able to calculate the charge x using the correct physics. But इस वीडियो में आई वांटेड टू शो यू किस तरीके से स्पेशल वैल्यू लेके फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है बाय एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। ऑलराइट, तो ये सब मन में रखना। यू मे एनकाउंटर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस इन योर जेईई मेन शिफ्ट और इन योर मॉक टेस्ट दैट यू गिव नेक्स्ट, तो वहाँ पे ट्राई एंड अप्लाई दिस मेथड। ओके, देख लो। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। Two sources of equal EMF are connected in series. This combination is connected to an external resistance R. ठीक है, the internal resistances of the two sources are R1 and R2. R1 greater than R2 बोला गया है, so ये कहीं तो यूज करेंगे अपन। If potential difference across the source of internal resistance R1 is 0, मतलब पहले वाले सोर्स के अक्रॉस potential difference 0 है, then the value of capital R will be what? तो सबसे पहले तो ऑप्शंस अपन देखेंगे। R1 greater than R2 में मेरे को कैपिटल R का वैल्यू पूछा है, अभी रेजिस्टेंस तो पॉजिटिव भी होता है, करेक्ट, रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो R1 greater than R2 में ये तो वैसे भी हट गया। ठीक है, थोड़ा ये देख के फील आना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन अपने को यूज करना पड़ेगा ऑप्शंस में। एक्चुअली एक ही ऑप्शन है जहां पर ये इन्फॉर्मेशन इज एक्चुअली मेकिंग सेंस। यहाँ पे R1 R2, यहाँ पे R1 R2 आर ऑल सिमेट्रिकल, तो दैट डजंट मेक सेंस टू गिव दिस। ठीक है, तो थोड़ा फील आ रहा है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बट फिर भी अपन स्पेशल वैल्यू से इस वैल्यू को, इस आंसर को निकाल लेते हैं। तो द स्पेशल वैल्यू दैट आई एम गोइंग टू टेक इज, लेट्स से कि अगर R2 0 है, सपोज R2 को मैंने 0 कर दिया, तो क्या होगा, डायग्राम देखो क्या होने वाला है। मेरे पास एक EMF है, एक रेजिस्टेंस R1 है, कोई एक बैटरी को मैं आइडियल ले रहा हूँ इस तरीके से, आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस इट टू अ सिंपल प्रॉब्लम। सो दूसरा जो बैटरी है वो उसका रेजिस्टेंस 0 कर दिया मैंने, एंड इट इज दिस एंटायर थिंग इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस R। ठीक है, इस तरीके से यू कैन ड्रॉ R नीचे ऑल्सो, बट आई एम जस्ट ड्रॉइंग R ऊपर। नाउ
दोनों का ईएमएफ सेम है, करेक्ट, दोनों में सेम करंट जा रहा है एंड दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए ऑब्वियसली। मतलब दोनों के अक्रॉस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो ऑब्वियसली इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए बिकॉज ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। सो आई कैन ट्रीट कैपिटल आर एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस जस्ट बाय लुकिंग एट द डायग्राम एंड देयरफॉर आई कैन डायरेक्टली से आर इक्वल टू R1 होना चाहिए व्हेन R2 इज जीरो बिकॉज बोथ दीज सेल्स आर नाउ आइडेंटिकल। ठीक है, इसके थ्रू करंट है, उसके थ्रू करंट सेम है, सीरीज में है, दोनों का ईएमएफ सेम है and potential difference दोनों के अक्रॉस सेम है, so obviously resistance भी सेम होना चाहिए। so if R2 equal to 0 then capital R must be equal to R1। अब चेक कर लेते हैं, इसमें R2 को 0 रखा तो फिर तो 0 हो गया, गलत हो गया। इसमें अगर R2 को 0 रखा तो R1/2 हो गया, गलत हो गया। इसमें R2 को 0 रखा तो कैपिटल R का वैल्यू R1 आ रहा है। alright, so that is how once again we try to reduce our problem to a simple problem। तो मैंने यहाँ पे कैसे सोचा how did I choose this। सबसे पहले तो मुझे दिया गया है R1 is greater than R2, तो उसमें मेरा एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर मैंने सोचा कि यार इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है जनरल वैल्यूज, तो क्यों नहीं मैं एक आइडियल बैटरी को रेड्यूस कर लूँ। व्हाई नॉट रेड्यूस दिस प्रॉब्लम टू एन आइडियल बैटरी। अब किसको आइडियल बैटरी बना सकता हूँ, दोनों को बना सकता हूँ क्या, नहीं, बिकॉज R1 इज ग्रेटर देन R2, तो R2 को ही मैं 0 सेट कर सकता हूँ। फिर वहां से मैंने डायग्राम बना के देख लिया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांट यू टू कीप इन माइंड। ऑफ कोर्स वंस अगेन यू शुड नो हाउ टू डू दिस करेक्टली यूजिंग किर्चॉफ्स लूप लॉ एंड एवरीथिंग, बट if you can get a couple of questions where you can apply this concept तो तुम्हारा काफी टाइम सेव हो जाएगा। alright, देख लो। now let's come to the next method, cheat code 2, जो मैं बोल रहा हूँ dimensions of options। so options में dimensions भी चेक करके काफी बार you can quickly eliminate the options। एक एग्जाम्पल से ही अपन थ्रू PYQs के एग्जाम्पल से ही अपन देखेंगे, so you'll get a feel of how to have this kind of a mindset। let's take a look। So let's look at a question जो JEE 2023 में आया था, gas obeys PT square equal to constant ऐसा process, coefficient of volume expansion of the gas will be what। so बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका ये पता ही नहीं था कि कैसे गैस के लिए कैलकुलेट किया जाता है। however थर्मल एक्सपांशन से मुझे पता है, थर्मल एक्सपांशन के चैप्टर से आई नो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन मतलब वो गामा, अल्फा बीटा गामा में गामा, उसका यूनिट्स क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस होता है हमेशा। इट्स ऑलवेज द डायमेंशन ऑलवेज 1 by टेम्परेचर, करेक्ट। सो डायमेंशन ऑफ गामा इज 1 by टेम्परेचर, पर डिग्री सेल्सियस होता है अल्फा बीटा गामा के यूनिट्स। सो देयरफॉर देयर इज ओनली वन ऑप्शन दैट विल बी पर 1 by टेम्परेचर का डायमेंशन, ओनली ऑप्शन डी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को यू शुड हैव सॉल्व्ड इट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। यू शुड स्टिल नो हाउ टू डू दिस प्रॉपरली, बट डायमेंशनल एनालिसिस से अगर इस तरीके से क्वेश्चन है और ऐसे ऑप्शंस आए एग्जाम में तो you should be able to do it simply looking at the dimensions, and that is what was expected in JEE 2023 as well। ठीक है, alright। फिर थोड़े ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पे थोड़ा डायमेंशनल एनालिसिस लगा और थोड़ा सा बेसिक फिजिक्स का कॉमन सेंस लगा के you can actually get the answer once again without calculation। देखते हैं अपन। Let's look at a question that came in JEE 2023। A gas at temperature T is adiabatically expanded to double its volume, work done by the gas in the process is what, गामा का वैल्यू दिया गया था। ठीक है, so once again first of all we'll try and look at the options। अब options में dimensions अलग अलग दिख रहे हैं, देखो। so सबसे पहले तो work का dimension is same as nRT का dimension, इंटीग्रल PdV, PV का डायमेंशन है सेम एज nRT, करेक्ट। तो R and T must both appear in the numerator, तो ये गलत हो गया, R नीचे आ गया, यहाँ पर टेम्परेचर डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये भी गलत हो गया। अब डायमेंशनल एनालिसिस से ऑप्शन ए और डी दोनों हो सकते हैं। सो नाउ लेट्स लुक एट अ लिटिल बिट ऑफ फिजिक्स, कॉमन सेंस। अब गैस एट टेम्परेचर टी इज एडियाबेटिकली एक्सपांडेड, अब गैस एक्सपांड करता है तो वर्क कैसा करता है, पॉजिटिव वर्क करता है। सो देयरफॉर ये वाला ऑप्शन गलत हो गया बिकॉज दिस इज नेगेटिव, गिव्स अस आंसर डी। ठीक है, सो कंबाइनिंग डायमेंशनल एनालिसिस विद द बेसिक थोड़ा सा फिजिक्स, एकदम बेसिक फिजिक्स, गैस एक्सपांड करता है तो पॉजिटिव वर्क करता है, immediately without any calculation you can get the correct answer। ठीक है, so instead of actually calculating गामा का वैल्यू यूज करके TV raised to gamma -1 वगैरह इक्वेशन ऑफ प्रोसेस यूज करके पूरा कैलकुलेशन करने की जगह you could have solved this question if you were a 2023 aspirant simply using dimensional analysis and a little bit of physics। ठीक है, देख लो। Let's look at a question जो JEE 2022 में आया था, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted electrons is E when the light incident on the metal has a wavelength lambda। To double the kinetic energy, the incident light must have wavelength what। तो सबसे पहले डायमेंशनली एनालाइज करते सारे ऑप्शंस को। लुक एट ऑप्शन ए, ऊपर भी HC है नीचे भी HC है, तो ये तो डायमेंशनलेस हो गया, तो ऑब्वियसली वेवलेंथ का डायमेंशन है ही नहीं, डायमेंशनलेस हो गया, करेक्ट। अच्छा, ऑप्शन बी, ऊपर HC है नीचे HC है, तो वो डायमेंशंस कट गया, बचेगा वेवलेंथ, तो इसका डायमेंशन करेक्ट है।
ऑप्शन डी का भी एच सी एंड एच सी इसका भी डायमेंशन करेक्ट है, वो कट के लैम्डा बचेगा, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, इसका ऑप्शन अगर मैं ऊपर नीचे, कैन यू सी कि ये h का डायमेंशन और h का डायमेंशन कट जाएगा, करेक्ट, बचेगा लैम्डा का डायमेंशन और c का डायमेंशन नीचे। ऑब्वियसली लैम्डा बाय c इज नॉट द करेक्ट डायमेंशन, वी सिंपली नीड द डायमेंशन ऑफ लैम्डा, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। सो अब बचे हुए हैं ऑप्शन बी एंड डी जिसमें डायमेंशंस करेक्ट है। तो अभी थोड़ा सा फिजिक्स यूज करते हैं। नाउ वी नो कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर एमिट करना है तो जो वेवलेंथ है, से hc by lambda इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, दैट ऑब्वियस उससे तो ज्यादा ही होगा ना एमिटेड इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, करेक्ट, नहीं तो बिकॉज वी नो थोड़ा सा वर्क फंक्शन में चला जाता है। सो देयरफॉर hc इज ग्रेटर देन lambda e, करेक्ट। नाउ कैन यू सी दैट मींस दैट दिस बिकम्स नेगेटिव, डिनोमिनेटर देखो, मुझे पता वेवलेंथ नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, सो ओनली आंसर इज बी, ठीक है। सो इस तरीके से यू कैन कीप एलिमिनेटिंग ऑप्शंस यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस एंड थोड़ा बहुत फिजिक्स विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन। यू शुड स्टिल नो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। नाउ द होल पॉइंट इज दैट ऐसे ये जो चीट कोड्स है वो थोड़े प्रैक्टिस से ही आएंगे, सो ट्राई एंड यूज देम इन मॉक टेस्ट, ट्राई एंड यूज देम व्हेन यू आर सॉल्विंग PYQs। अगर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस, इफ यू आर नॉट एबल टू अप्लाई दिस, देन लीव इट, डू इट बाय द प्रॉपर मेथड। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा बट एक्चुअली आंसर तो आ जाएगा एज लॉन्ग एज यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ योर एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स बिहाइंड दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रॉपर मेथड से करोगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा बट आंसर आ जाएगा। इफ यू आर एबल टू open your mind and figure out these applications of these cheat codes to such problems, तो it will save you a lot of time, ठीक है। alright, देख लो। Finally let's come to cheat code 3। तो इस cheat code में the main key is to only solve half the question। आधे सवाल को solve करो, पूरा calculation करने की जरूरत नहीं है, and you will still get the answer from the options, alright। So once again examples from PYQ से ही देख लेते हैं, let's take a look। So let's look at a question that came in JEE 2022। इतना बड़ा सा सवाल दिख रहा है, EM waves का है, and majority of the students इस सवाल के साइज को देख के ही छोड़ दिए, ठीक है। They didn't bother to do the calculations at all। However, we don't need to do the calculation, we don't need to do the full question। देखो क्या question है, an EM wave propagating in x direction has wavelength 8 millimeters, electric field is in the y direction having amplitude 60 volt per meter, EM wave is propagating in vacuum, choose the correct fields का equations, ठीक है। So हर ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट, b का z कंपोनेंट दिया गया है। नाउ सबसे पहले तो मुझे दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड 60 है, करेक्ट। सो पहले ही ऑप्शन सी और डी निकल गए। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या है, 2 × 10⁻⁷, गलत है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया 60 और ऑप्शन में ही अलग दे दिया, हटा दो, ठीक है। बचे ऑप्शन ए एंड बी। नाउ मैंने क्या बोला, सॉल्व ओनली हाफ द क्वेश्चन। अगर पूरा क्वेश्चन करना होगा तो वी नीड द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वी नीड द kx माइनस ओमेगा टी लिखना होता है, तो k का वैल्यू चाहिए, ओमेगा का वैल्यू चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, ठीक है। हाउएवर वी डोंट नीड टू डू एनी ऑफ दैट, द रीजन इज वी ओनली नीड टू चेक द एम्पलीट्यूड्स। यहाँ पर मुझे पता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे तो बहुत कम होगा मैग्नेटिक फील्ड का न्यूमेरिकल वैल्यू, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग इट बाय अ वेरी लार्ज नंबर, स्पीड ऑफ लाइट। तो देखो 60 से 2 तो नहीं होगा, 60 से 2 × 10⁻⁷, ये करेक्ट लग रहा है, ठीक है। 60 अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है तो उससे तो बहुत छोटा होगा मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग बाय 3 × 10⁸। तो डायरेक्टली ऑप्शन ए एलिमिनेट करके बी। तो ये क्वेश्चन इतना स्कोरिंग था, एंड येट many students just left it looking at the size of the question। So keep your mind open to eliminating options in the way that I have shown you, and we only solved half the question। मतलब सिर्फ एम्पलीट्यूड चेक किया, वो भी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट वो वैल्यू से दिख जाता है, ठीक है। देख लो, लेट्स टेक अ लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2021। मेरे पास एक PV ग्राफ है, साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है, n moles of gas, AB is an isotherm at temperature T, find the work done by the gas in the cyclic process। ये पूछा गया क्वेश्चन में, ऑलराइट। तो वंस अगेन वी डोंट हैव टू सॉल्व द फुल क्वेश्चन, इफ यू लुक एट द ऑप्शंस यू कैन क्विकली गेट द आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस बाय ओनली सॉल्विंग हाफ द क्वेश्चन। यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है, सब कुछ टेम्परेचर के टर्म्स में है, करेक्ट आंसर। सो AB के अलॉन्ग वर्क डन इन AB, I know the standard formula nRT ln V2 by V1, final volume by initial volume is ln2, correct। Now B to C में वर्क डन निकालने के लिए I'll have to convert everything into temperature, प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो BC में नेगेटिव वर्क होगा, गैस कंप्रेस हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, सो टोटल वर्क डन विल बी लेसर देन दिस, क्योंकि CA में तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसमें वर्क डन होने वाला है नहीं, तो जो भी वर्क होगा वो AB एंड BC में होगा, एंड नेट वर्क विल बी लेसर देन AB, करेक्ट, बिकॉज BC में नेगेटिव वर्क होगा।
So which is the option lesser than work done by AB? Only this. Zero तो नहीं हो सकता because मुझे पता है area of the loop is the work done. Correct? So non-zero तो होगा. This is obviously greater than nRT ln2. This is equal to nRT ln2. This is the only option lesser than nRT ln2. ठीक है? So the point is we only solved half the question. We only got the work done in AB. बाकी का work done BC में नहीं निकाला. Even the question is asking work done in the entire cycle, but option से फटाफट eliminate कर दिया. ठीक है? So always keep your eyes open. ऑप्शंस को पहले हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के बाद बिफोर यू सॉल्व द क्वेश्चन, बिफोर यू स्टार्ट डूइंग द कैलकुलेशन, ऑप्शंस चेक करो. कैन यू एलिमिनेट द ऑप्शंस फर्स्ट? इफ नॉट देन यू डू इट प्रॉपर्ली. ओके, ठीक है, ऑलराइट, देख लो. सो दीज आर द 3 मेथड्स दैट आई वांटेड टू शो यू एंड लेट मी जस्ट क्विकली समराइज इट एंड लिस्ट इट डाउन. द चीट कोड 1 जो था, स्पेशल वैल्यूज. cheat code 2, the dimensions of the options, और थोड़ा सा कभी कभार थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस ऑफ फिजिक्स यूज करके एलिमिनेट हो जाते हैं. एंड चीट कोड 3, we only solve half the question to save time. ठीक है, so ये 3 methods I want you to keep it in your mind, back of the mind में रखो. When you're solving your next mock test, when you're solving your next set of PYQs, whenever you're solving some questions for JEE Mains, keep these methods in the back of your mind and see if you can apply them. तो जितने ज़्यादा questions तुम encounter करोगे इसके application के, you will get the confidence to do it in your JEE Mains का shift. All right, but you should also remember that you have to know the actual physics also. ये सारे questions जो मैंने examples कराए उसका एक्चुअल फिजिक्स भी तुमको पता होना चाहिए, बिकॉज दे मे गिव यू क्वेश्चंस विद वैल्यूज इंस्टेड ऑफ द वेरिएबल्स दैट वी सॉ. ठीक है, सो अगर जनरल वेरिएबल्स नहीं है तो ऑफ कोर्स ये जो ट्रिक्स है वो काम नहीं करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा फिजिक्स तो तुमको पता होना ही चाहिए ये सारे क्वेश्चंस के पीछे, बट इन द एग्जाम यू कैन एक्चुअली यूज दीज टू सेव योर टाइम. ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल सी यू एट द टॉप. गुड नाइट.